Hello everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are working harder than hardest to achieve your aim, to achieve your goal, right? And I am here just to help you in realizing your dreams, in uh, converting your dream into a concrete reality. My role in your becoming a judge or becoming a lawyer or becoming a corporate lawyer or say doing exceedingly well in the legal profession, the my role is of a catalyst, right? That my role is to accelerate the speed at which you gain success, right? So guys, let us today start with certain questions which have frequently been asked, and there is a greater chance and higher probability that it shall be asked in the upcoming examinations as well. So the first question for you is before you, right? The question is relating to undue influence. The question says that where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other, there is said to be, and now the options are undue influence, coercion, misrepresentation, and fraud. My dear students, if you have studied contract, then you would find that section 16 of Indian Contract Act talks about undue influence. सेक्शन 15 से इट स्टार्ट्स विथ फैक्टर्स विसिएटिंग कंसेंट से 15 में जब आप पढ़ते हैं तो 15 में आपको कोर्सन मिलता है, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस मिलता है, 17 में फिर फ्रॉड और 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन और उसके बाद में मिस्टेक वगैरह आता है। तो अभी जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं इसमें, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप हमेशा याद रखेंगे कि देयर आर टू पार्टीज एंड वन इज इन अ सुपीरियर पोजीशन एंड द अदर इज इन इंफीरियर पोजीशन। एक जो दो पार्टीज हैं जो दोनों के बीच में रिलेशन सबसिस्ट कर रहा है वो इक्वल फुटिंग पर नहीं है, बोथ आर ऑन अनइक्वल फुटिंग। एक है जो हायर पोजीशन पर है और एक है लोअर पोजीशन पर है, एक सुपीरियर पोजीशन पर है, एक इंफीरियर पोजीशन पर है। तो जब सुपीरियर पोजीशन वाला बंदा इंफीरियर पोजीशन वाले बंदे को के विल को डोमिनेट करता है, इफ ही डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर, then in that situation we say that undue influence has been caused. In that situation we say that undue influence has been caused. undue influence के जो बेसिक मोटिव है कि क्यों ऐसा, मतलब वाई द सुपीरियर पर्सन tries to dominate the will of the inferior person, inferior party. Why it is so? The answer is in order to gain an unfair advantage over the other. जैसे कि मान लो कोई मैनेजर है, कैशियर को उसने बोल दिया कि उसका लोन सैंक्शन कर दो और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके बेसिस पर उसको 1 करोड़ लोन मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैनेजर ने उससे कुछ घूस ले रखा है, उससे कुछ ब्राइब ले रखा है जिसको लोन चाहिए, तो कैशियर को बोला, क्लर्क को बोला कि तुम उसको लोन दे दो, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्लर्क डर जाता है, उसको लगता है कि यार मेरा ब्रांच मैनेजर है, मेरा रीजनल मैनेजर है, अगर इसके अगेंस्ट में हम जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में वो जो सुपीरियर वाला बंदा है, जो सुपीरियर पोजीशन को होल्ड कर रहा है, ही गेन्स एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, राइट? तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन यही, राइट? So guys, coming on to the next question. The next question for you is with regard to undue influence only. I told you just now that one party is able to dominate the will of the other when he is able to dominate the will of the other. Options are if the parties are on equal footing. ये तो अपने आप में गलत है, अगर इक्वल फुटिंग होगा तब डोमिनेट करने के पोजीशन में नहीं होगा।
सेकंड है इफ द पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जब इक्वल फुटिंग पर नहीं है, एक सुपीरियर पोजीशन में है, एक इंफीरियर पोजीशन में है, देन इन दैट सिचुएशन देयर विल बी अ केस ऑफ दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ क्लियर कट केस ऑफ undue influence, right guys? Coming on to the next question for you is that a very important question which have been asked several times, that in which of the following cases Subbarao justice cautioned against the evolution of new heads of public policy। जस्टिस सुब्बाराव जो कि बहुत नामी जज रहे, 21 केस में उन्होंने ऐसा काउशन दिया, एक ऐसा वार्निंग दिया अगेंस्ट द एवोल्यूशन ऑफ न्यू हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, राइट? द ऑप्शंस आर एज फॉलोज: खूबचंद वर्सेस बेरम, भगवान दत्त शास्त्री वर्सेस राजाराम, सी गंगाराम वर्सेस कुप्पमल, फोर्थ वन इज घेरूलाल वर्सेस महादेव। आप जब पब्लिक पॉलिसी वाला सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 23 को जब आप पढ़ते हैं, तो आपको ये केस पढ़ना ही पढ़ना है, घेरूलाल वर्सेस महादेव। ये एकदम लीडिंग केस है सेक्शन 23 पर। तो उसमें ये जो स्टेटमेंट है जस्टिस सुब्बाराव का, दैट हैज बीन आस्क्ड in so many judicial services examinations several times and APO exams, right? Gherulal versus Mahadev, that's the right answer, right? Coming on to the next question for you is that A agrees to let her daughter for hire to be for concubinage. A agrees to let her daughter for hire टू बी फॉर कॉन्कुबिनेज। ए अपनी बेटी को कॉन्कुबिनेज के लिए हायर करने के लिए बोलती है। ये सेम इलस्ट्रेशन आपको सेक्शन 23 में मिलता है, और सेक्शन 23 में आप जानते हैं कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, विच इज से कंसिडर टू बी इमोरल, ये सारी बातें दी गई है सेक्शन 23 में, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है, ये एक इलस्ट्रेशन है, डायरेक्ट आपके बेयर एक्ट से दिया गया है, राइट? तो इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं कि द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज इमोरल, बिकॉज इट इज इमोरल। और सेक्शन 23 में वन ऑफ द क्लॉज इज दैट इफ इट इज इमोरल, राइट? इफ इट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो है ही है, राइट? तो इसका आंसर यही होगा। आई थिंक दैट पब्लिक पॉलिसी के सारे इलस्ट्रेशंस को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जिससे बहुत सारे सवाल पूछे गए पहले भी, राइट? आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट्स वेरी इन अ वेरी detailed manner, and in a very say simple steps I have tried to convey it to you, right? So guys, stay tuned on our YouTube channel for all the law relevant videos and all the legally relevant updates. Thank you everyone for watching me. Jai Hind.